Plane mirror placed 22.5 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeters. Question asked is, find where an object can be placed between the two mirrors. Find where an object can be placed between the two mirrors so that the first image in both the mirrors coincide. So you have to at what distance object should be placed between two mirrors so that the first image in both the mirrors coincide. So that first image in both mirrors. This is a good question, students. Second one. Once again, I'll read the second question, students. A plane mirror is placed at 22.5 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find where an object can be placed between the two mirrors. So at what distance the object should be placed between the two mirrors so that the first image in both mirrors, coincides. Both the mirrors coincides. Hope the two questions are clear, students. Just try to solve both these questions. And one who gets it, please try to unmute yourself and answer. Students, are you getting it, students, both these questions?
Norman, can you tell me what is the data given in the first case? 4 centimeter tall object placed at a distance of 8.3 centimeters. And what exactly 4 centimeters given to you? Height of object. Very good. So that can be written in terms of O or you can write on HO. तो तुम्हारी मर्जी है. लेकिन साइन कन्वेंशंस लिखने की जरूरत है स्टूडेंट्स, and that will be plus 4 centimeter above the principal axis, students. And it's placed at a distance of 8.3 centimeter from which mirror? Very important is please highlight the mirror. Mirror कौन सा है? Concave mirror है. And the object is placed at a distance of 8.3. So what exactly sign conventions will take it? Will take it positive or negative? Negative. Negative. Okay. It's on the left hand side. 8.3 centimeters on the left hand side. फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्केव मिरर का क्या होगा? फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. पॉजिटिव. दीप, तो एब्सेंट था ना लास्ट Virtual लेक्चर? image. हाँ दीप, लास्ट लेक्चर एब्सेंट था ना तुम? हाँ सर, क्यों? तो ट्रैवलिंग कर रहा है करने. ऐसा मत क्या करो यार. नॉर्मन, फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से. और क्यों? See, I told you very clearly, जब तक साइन कन्वेंशंस क्लियर नहीं होगा तुम्हें प्रॉब्लम से नहीं आएंगे. And students, I made it very clear. Concave mirror has what kind of a focus? What kind of focus it has? Real Does focus. Yes, real focus. But is that focus formed on the in the direction of the incident light or opposite the incident light? तो तुम्हें सिर्फ एक डायग्राम अगर तुम बना भी देते हो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्लियरली बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना. तुम्हारा फोकस यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो ये फोकल लेंथ हुआ. तो आर यू मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और ऑपोजिट? Opposite. The focal length of concave will be always negative. जब तक तुम साइन कन्वेंशंस को सही तरीके से नहीं बिठाओगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने क्या बोला? प्रॉब्लम बहुत इजी है. मैंने ये साइन कन्वेंशंस के हिसाब से दिया था बस. अभी आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं. इफ यू आर गुड इन मैथ्स यू विल बी एबल टू गेट इट. तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. What exactly formula for linear magnification? Linear magnification is given by the formula size of image upon size of object, which is equal to negative image distance upon object distance minus b by u. पूछा क्या उन्होंने? इमेज डिस्टेंस. यानी पहले केस में v पूछा है स्टूडेंट्स. क्या f पता है? हाँ सर f मालूम है. क्या u पता है? हाँ सर u भी पता है. तो कैन आई गेट द आंसर फॉर v? अब मुझे ये स्टूडेंट्स बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, you can predict your answer. That means you can estimate your answer. You cannot get an exact value. लेकिन एस्टिमेशन हो सकता है. फोकल लेंथ कितना है? तुम बोलोगे सर 15.2. ट्वाइस फोकल लेंथ कितना हो जाए? 30.2. ट्वाइस फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 30.4 स्टूडेंट्स, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 8.3. स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे? विद इन द फोकल लेंथ. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर the object is within the focal length, where exactly the image will be formed? Virtual image. Right side. It's virtual, right? And yani will it be on the same side or behind the mirror? Behind. तो तुम्हारा आंसर v किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? Positive. Minus. पॉजिटिव. किसने बोला माइनस? वर्चुअल है ना, तो ऐसा आएगा ना तुम्हारा इमेज. हेलो, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं. इस तरफ आएगा ना इमेज. और ये डिस्टेंस तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो? पोल से कर रहे हो. p stands for pole. You're measuring the distance in the direction of incident light. Students, this is your image distance. Students, sign conventions में ध्यान में रखना, distances measured in the direction of incident light are taken to be positive, opposite to incident light are taken to be negative. ये ध्यान में रखना. तो तुम्हें v यहाँ पे पॉजिटिव में ही मिलेगा. और तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो हमें इमेज डिस्टेंस मिल सकता है. क्यों नहीं पॉजिटिव में? इमेज साइज क्या होगा? यानी आई पूछा है, आई ले लो या एच आई ले लो, हाइट ऑफ इमेज. तो फॉर्मूला क्या है? माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओ लिखो या एच ओ लिखो, कोई फर्क नहीं करता. यहाँ पे भी साइन कन्वेंशंस लिखने की जरूरत है स्टूडेंट्स. माइनस वी बाई यू, व्हाट एग्जैक्टली इज यू गिवन टू मी? माइनस 8.3. v का आंसर पॉजिटिव में है, एच ओ क्या है? पॉजिटिव में है. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तुम्हें हाइट ऑफ इमेज किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा या नेगेटिव में मिलेगा?
हाइट ऑफ इमेज कैसा आना चाहिए, ऊपर की तरफ है ना, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। और पॉजिटिव। आएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में ही आएगा। देखो ना, यू किस में दिया है, यू किस में दिया मुझे, -8.3 ना, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही है। मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। स्टूडेंट्स डू कीप इन माइंड साइन कन्वेंशंस, वापस में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। Students, if in case if I speak about sign conventions, whether it's for plane mirrors, okay, whether it's for curved mirrors, okay, plane mirrors के लिए भी हम estimate करते हैं, हम try to keep that the object is placed on the left hand side. Plane mirror के अंदर तो तुम्हारा mirror plane ही होगा। अगर ये radius of curvature क्या है students for plane mirror? What is the radius of curvature of plane mirror? इसको बता सकता है students? Sir, infinite. Pardon? Sir, infinite. Infinite, absolutely correct. और वहां पे अगर तुम देखोगे तो प्लेन मिरर के अंदर जो डिस्टेंस का और the distance of the object from the mirror, exactly the image is formed at the same distance inside the mirror becomes. Okay, now if we happen to consider for mirrors, curved mirrors, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कॉन्केव के लिए ये वाला डायग्राम है, हमेशा ये ध्यान में रखना। कॉन्वेक्स के लिए ये वाला डायग्राम, प्लीज। कॉन्वेक्स के लिए बार वाला रिफ्लेक्टिंग है, कॉन्केव के लिए अंदर वाला। रूल क्या है साइन कन्वेंशंस का? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहता है। जो जो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जब ये ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, जब ये ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब करता है कुछ लाइट और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा लाइट रे है, ये लाइट रे अभी स्ट्राइक करेगा मिरर को। तो where is the ray of light traveling from? The ray of light is traveling from left to right, दोनों केस में from left to right हमेशा। अभी तुम्हारे डिस्टेंसेस के बारे में बताता हूँ। अगर कोई डिस्टेंस तुम मेजर करते हो पोल से, जो भी डिस्टेंस को मेजर करना है सारे पोल से ही मेजर करना है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड भी है। जो डिस्टेंस तुम मेजर करते हो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, उसको हम लेते हैं नेगेटिव में। जो डिस्टेंस मेजर करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसको तुम लोगे पॉजिटिव। भले कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, रूल दोनों के इसमें सेम ही होता है। अभी देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। Distance is measured above the pole of the mirror and below the pole of the mirror on the principal axis taken to be positive and negative. जैसे कि height of object above, यहाँ पे height of image तुम्हें ऊपर ही मिला था क्योंकि वर्चुअल है, तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। Focal length of a concave mirror is always negative. Focal length of a convex mirror is always positive because a concave will give you a real focus. A convex will give you a virtual focus. क्या ये clear हुआ students? यस। Okay. Now next one, please. Yeah, this is a good question, students. Try to draw simple ray diagram for instance. एक छोटा सा geometrical diagram बना दो and we'll be able to crack it. Question क्या students? Plane mirror placed 22.5 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. So if I want to draw the diagram, ये तुम्हारा concave mirror है. This is the principal axis. This is the pole of the mirror. The focal length. This is focus, center of curvature. Focal length of a concave mirror ये दिया है तुम्हें 10 centimeter. अगर मैं imaginary dotted line करता हूँ, तभी स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा री डायग्राम जैसा तो एक डॉटेड लाइन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा फोकल लेंथ है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो में लिख लो
Okay, plane mirror is placed 22.5 centimeter in front of a concave mirror. यानी यहाँ से 22.5, यानी देखो स्टूडेंट्स ये 10 है, ये 10 हुआ तो ये 20 हुआ टोटल, रेडियस ऑफ कवरेज 20 हुआ, 22.5 यानी समवेयर इसके पीछे होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा प्लेन मिरर होगा. Okay, this is plane mirror. And this is reflecting part of it, and the inner is silver. This is concave mirror. At what distance is it? 22.5 centimeter. सारे distances हम pole से लेते हैं students. So now plane mirror placed 22.5 centimeter in front of a concave mirror. Focal length of concave is given to 10 centimeter. At what distance object should be placed? What distance object should be placed behind the mirror? Of course, object will be placed behind the. Sorry, at what distance the object should be placed between the two mirrors? Sorry, between two mirrors. कहाँ पे तुम object को place करोगे? So that उसका जो first image होगा, in both the mirrors coincides. Sir, Yes. sir, I got the answer. What's the answer? You got it? Sir, at a distance of 15 centimeter from the pole. At a distance of how much? 15 centimeter, 1.5. 1.5 centimeter, 15 centimeter. But from where? From the mirror? From the plane mirror? Or from the From the pole. From the pole. From the pole. Absolutely correct. And from the mirror, how much distance it will be then? 7.5. 7.5. Absolutely correct. क्योंकि तुम्हारा total distance कितना है? 22.5. See students, Deep has already solved it. चलो दीप, कैसे किया? सर पहले तो मतलब कर्वेचर और फोकस के बीच में एक यू डिस्टेंस लिया, वहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस हो. हाँ, यानी उसने क्या किया? Let us assume कि object is placed. ध्यान से सुनना. Let us assume that the object is placed at a distance x from the pole of the mirror. ये उसने assumption ले लिया. हमें नहीं पता ना क्या डिस्टेंस में. तो मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस मिरर से कितना होगा? तुम लोग सर इन दोनों का डिस्टेंस 22.5 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सर 22.5 minus 6. एग्रीड. ये किससे हुआ? ये प्लेन मिरर से हुआ. नाउ इफ आई डोंट कंसीडर कॉन्केव मिरर, स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉन्केव मिरर को देखूं ही नहीं और मैं अपना इमेज देखता हूं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट 22.5 माइनस x सेंटीमीटर प्लेन मिरर के सामने है, तो मुझे बताओ इमेज कहां पे फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर? सर उतना ही डिस्टेंस पीछे. वेरी गुड. उतना ही डिस्टेंस, यानी एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस अगर मैं ट्राई टू कंसिडर करूंगा तो मेरा सेम एस्टिमेशन के हिसाब से आई कैन गेट माय आंसर ओवर हियर. लेकिन कौन सा इमेज होगा? ये तो वर्चुअल इमेज होगा. यानी ये सोचो ना कि अपने आप को खड़े हुए देखो मिरर के सामने, तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस अंदर की तरफ होगा. ये कितना होगा? 22.5 माइनस x अंदर की तरफ होगा. ये तुम्हारा इमेज होगा. एग्रीड. अभी नाउ इफ आई से व्हाट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, what exactly the distance of this particular image from the concave mirror, कितना होगा? ये जो इमेज है फॉर्म हो रहा है मिरर से कितना, कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी सर पे? माइनस. हाँ, ये कम हो जाएगा सर. हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना. ये देखो, मिरर का देखो, मिरर कितना है सर? ये डिस्टेंस कितना है सर? ये डिस्टेंस 22.5 है. ये कितना है? 22.5 माइनस x. दोनों को ऐड कर दूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 45 minus x. माइनस 45 प्लस 45 माइनस x. क्या ये क्लियर हुआ सबको? सबसे पहले हाँ. अभी ध्यान से रीड करो क्वेश्चन. पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, यानी मुझे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x so that first image in both mirrors coincide. Yani the first image due to plane mirror is
एट पॉइंट, अगर ये मैं लेता हूं एट पॉइंट ओ, तो ये एट पॉइंट ओ डैश with respect to plane mirror. With respect to concave mirror also, students, I want the image exactly over there only. With respect to concave, मुझे image यही मिलेगा, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, with respect to both the mirrors they coincide. मुझे बताओ concave mirror के हिसाब से image कैसे होगा, क्या virtual होगा या real होगा? रियल होगा. Real होगा, because it's formed on the principal axis, students. स्टूडेंट जितने भी रे डायग्राम्स हम लोग ने कॉन्केव के लिए किए हैं, सारे डायग्राम्स के लिए तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? रियल इन्वर्टेड, एक्सेप्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने फोकल लेंथ के बीच में रखा है, जो प्रीवियस केस में हम लोग ने प्रॉब्लम किया, वहां पे तुम्हें वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स तुम्हारा यहाँ पे जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट, यानी ये जो इमेज है, सपोज इफ आई सी दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर, एंड दिस इज द इमेज फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्केव मिरर. दोनों कोइंसाइड हो रहा है, एक ही लाइन पे कोइंसाइड हो रहा है. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, with respect to mirror, if I happen to consider concave mirror, ये जो 45 minus x है वो क्या बन जाता है? क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा कॉन्केव मिरर के हिसाब से या इमेज डिस्टेंस होगा? इमेज डिस्टेंस. वेरी गुड, तो v आ गया, ये v है स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस है कॉन्केव मिरर. मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हुआ है? सर लेफ्ट हैंड साइड. और रेस कैसे कहां से ट्रैवल कर रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये डिस्टेंस क्या होगा सर? ये नेगेटिव होगा. एग्रीड, ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द दिस x है, तो तुम्हारा ये क्या है? -x. एग्रीड. कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ इसका क्या लोगे? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज गिवन टू अस? नेगेटिव. -10 सेंटीमीटर. क्या तुम्हें v u f तीनों मिला? यस. कैन यू गेट एन आंसर फॉर x? फॉर्मूला क्या होगा? 1/f is equal to 1 v upon u. Solve the students and get me the answer. तुम्हें दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी. तीन, तुम्हें क्या मिला आंसर? दो आंसर्स मिलेंगे शायद. सर 30 and 15. सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर पॉसिबल होगा स्टूडेंट. 30 सेंटीमीटर तो मिरर के पीछे चला गया, समझ में आ रहा है? तीन मिरर के पीछे चला गया तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं. एंड इसको क्या करना है? इसको तुम्हें नेग्लेक्ट करना है. तो व्हाट एग्जैक्टली द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? 15 सेंटीमीटर. वेयर? फ्रॉम द concave mirror we consider 15 centimeter from concave mirror, and from the plane mirror it is at how much? 22.5 minus 15, that is 7.5. क्या ये clear हुआ students? Yes. Can I erase this? 1 minute. जब भी ऐसे क्वेश्चंस करो ना तो हमेशा डायग्राम की हेल्प लेके करना. whenever you try to solve certain questions, एक छोटा सा डायग्राम and sign conventions and read the problem in breakups. हर एक स्टेटमेंट को तोड़ के फिर उसका try to analyze what exactly the problem want to speak about and go stepwise.
Done, sir. Okay. Since a ray is glancing at angle of 30 degrees. Ray is glancing at an angle of 30 degrees with the mirror. Find angle of deviation. Ray is glancing at an angle of 30 degrees with the plane mirror. Students, with the plane mirror. Find angle of deviation. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Sir, angle of deviation means angle of reflection. No? नहीं, किसने बोला? किसने बोला? तो सोचो डेविएशन का इंग्लिश में कैसे करोगे? डेविएट का मतलब क्या होगा? किसी चीज को जाना था सीधा, लेकिन सीधा नहीं गया और टेढ़ा हो गया. तो टेढ़ा कितना हुआ? हाउ मच इट हैज चेंज्ड इट्स पाथ. उसको हम बोलते हैं डेविएशन. तुम्हें जाना था सीधा, तुम्हें जाना था सीधा, लेकिन तुमने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ना डेविएशन. ये तुम्हारा डेल्टा होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है. Sir, 120. Okay, now students listen carefully. ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है? So this is your mirror. M1 M2 is your mirror. So 120 degree. हाँ, और देखो ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा टू द मिरर. अब मैंने क्या बोला? रे इज ग्लांसिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. स्टूडेंट्स, ग्लांसिंग एंगल, डीप ग्लांसिंग एंगल का मतलब क्या? सर एंगल मिरर के साथ जो बनाती है रे. हाँ, तो ये हुआ तुम्हारा 30 डिग्रीज. अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 60, है ना? जाना था उसको क्या? देखो, जैसे अगर मैं बोली मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता तो कैसा होता? ये जाएगा सीधा, है ना? जाना था उसको सीधा, लेकिन मिरर की वजह से क्या होगा? वो हिट होकर रिफ्लेक्ट कर देगा. तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 60. ये कितना है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द टोटल एंगल? टोटल एंगल कितना है? हाउ मच इज टोटल एंगल वी कंसीडर? 180. एग्रीड? Yes. मुझे ये स्टूडेंट्स, मुझे ये चाहिए, ये आंसर, ये मेरा डिविएशन है ना, ये मेरा डिविएशन है. तो 180 में से 180 में से मेरे को क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? आ गया तुम्हारा डेल्टा?
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. मैंने पूछा डिविएशन, हाउ मच डज इट डिविएट बाय? ध्यान से देखना, वापस मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ग्लांसिंग एंगल का मतलब द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये 30 मैंने जैसे नॉर्मल को कंसिडर कर दिया तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने क्या बोला, रे को जाना था सीधा, लेकिन जैसे मिरर रखा तो वो हिट होकर रिफ्लेक्ट होगा, सच दैट आई विल बी इक्वल टू आर। मुझे पूछा गया है ये एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया। तो ये है एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो 180 होगा उसमें से ये 120 में निकाल दो तो बचा कितना 60। सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 60। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। चलो एक इजी वाला, इसी के ऊपर इजी वाला। सपोज अगर मैंने मिरर लिया स्टूडेंट्स, ये इजी वाला पूछ रहा हूँ, बहुत इजी। अगर मैंने बोला अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, स्टूडेंट्स a ray of light is incident perpendicularly such that angle of incidence कितना होगा स्टूडेंट्स बताओ? ray of light is incident perpendicular, what is the angle of incidence over here? ray of light is incident So 0. zero, absolutely correct, क्योंकि angle of incidence is angle formed by the incident ray with the normal, तो angle of reflection भी zero है स्टूडेंट्स तुम्हारा, I will be equal to r। स्टूडेंट्स अगर यही रे को मैं यहाँ पे लेके आता और उसको परपेंडिकुलर ले लूंगा तो मेरा I तो जीरो हो जाएगा, तो r भी जीरो होगा। अभी ये रे हिट हो रहा है परपेंडिकुलर, मैंने पूछा फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे, 180. तो देखो उसका मतलब नाउ ही इज एबल टू आंसर, क्योंकि अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे सीधा जाता ना, है ना स्टूडेंट्स, जाता सीधा, लेकिन ये हिट होके वापस रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि ये पूरा यू टर्न मार दिया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये डिवाइडर है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा डिवाइडर है, तुम्हारी गाड़ी जा रही है ऐसे और ये गाड़ी पूरे से टर्न मार के यहाँ से आगे वापस, तो कह रहे सी यू हैव डिविएटेड बाय हाउ मच 180, जाना तो सीधा लेकिन तुमने यू टर्न मार दिया, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी पाई रेडियंस। क्या ये क्लियर हुआ? Next question. 3 mirrors are given to you. Are you getting it? 3 mirrors are given to you. Okay, a ray of light is incident at an angle of glancing of 45 degrees with the first mirror. With the first mirror. Students, I want to find out. I want to find out angle of deviation in this case. Question समझ में आया? 3 mirrors are placed as shown. Are you getting it? And the incident light is glancing at an angle of 45 degrees with the first mirror. What is the angle of deviation? Among the rest of the students, it's only Deep and Norman is responding. What about you, Harsh? Josh Desai, what are you doing, Josh? Josh, are you there? Yes, sir. सोचो, ऋषि क्या कर रहा है? ऋषि तूने आंसर देना ही बंद कर दिया। ऋषि, I need to speak to your parents. Saili, are you from Kipi Bhatia, Saili? Sumit, are you there in lectures? It seems you are not in lectures. Reply, or you are out of lectures. Sir, I am responding from starting only. Who's responding from starting? Sir, Harsh. हर्ष, अरे हाँ हर्ष तो है बराबर, तू तो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, तू और दीप आंसर दे रहा। नॉर्मन कहाँ पे है? Sir, I am also telling.
अच्छा फाइन फाइन फाइन। चलो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता सकता है? अरे रिया has kept her fingers crossed. She used to respond. This is Riya, है ना? Yeah, I remember. Crossed fingers. Yes, anyone? Riya, can you answer? Riya? Since I'm listening carefully, this is 45 degrees. Sir, तो तुम 90 degree. हाँ 90 degree. तीन मिनट दिए। दीप, दीप यू आंसर है? Yes, sir. हाँ तो स्टूडेंट, अरे दीप ये तो अपना रिट्रेस करेगा ना पाथ उल्टे डायरेक्शन में 180 होगा ना, ये वाला डायग्राम आएगा। दोनों रेस को, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट को मर्ज कर। देखो तूने 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 ये वाला, अगर यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, जब ये पॉइंट यहाँ पे हिट करेगा तो कहने से ये तुम्हारा नॉर्मल बन जाएगा। एग्री? ये नॉर्मल हुआ। Yes. ये तुम्हारा 45 तो ये भी 45 होगा स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। अगर 45 होगा हाउ द रे गोइंग टू गो? सो द रे इज गोइंग टू गो एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस ऑफ द मिरर, यानी इसको हिट ही नहीं करेगा स्टूडेंट्स, तो सीधा पैरेलल जाएगा। तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45। वापस ये हिट कर रहा है, यहाँ पे वापस नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल यहाँ पे जा रहा है, देखो ना दोनों नॉर्मल, बोथ द नॉर्मल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्रीज। ये देखो ये पहला नॉर्मल और ये दूसरा नॉर्मल, स्टूडेंट दोनों नॉर्मल हिट कर रहा है एट 90 डिग्रीज, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये 90 है, ये 45, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45। तो व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड लाइट? दैट इज आल्सो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये देखो ये इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट ट्राई टू मर्ज, इसका मिरर इमर्ज, यानी उसका मतलब क्या हो रहा है? द रे इज हिटिंग and reflecting back. So what exactly the angle of deviation is? How much? 180 degrees. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Friends ऐसे टाइप के Sir, इंस्टीट्यूट, can you explain again? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जब भी रे ऑफ लाइट हिट हो रही है फर्स्ट मिरर पे, तो ये क्लियर हुआ, ये 45 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। हाँ सर। फिर ये हिट होने के बाद पे कैसे जाएगा? 45 डिग्री होगा तो विल इट गो पैरेलल टू द बेस? यस। ये हाँ दोनों सर। नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल्स क्या होंगे? द टू नॉर्मल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो तुम्हारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 45। एग्रीड? Yes, sir. यानी वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस मिरर एट ऑल, यानी मेरे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मिरर 1 एंड मिरर 3 नॉट मिरर 2। तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखो ये तुम्हारा इंसिडेंट लाइट, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइट, अगर मैं दोनों को देखूं तो मिरर इमेज है इसी का, and it think as if the ray is hitting perpendicularly and it's reflecting perpendicularly. So what exactly the angle of deviation will be? Agreed? Deep, is it clear? Harsh, clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay. ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, दो मिरर्स दिया है, टू मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्टूडेंट्स, दोनों इंक्लाइन दिए हैं, and a ray of light is hitting at an angle of 30 degrees, glancing angle. Find the angle of deviation. इसको कैसे करोगे तुम? तो ये 30, तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 30 होगा, तो ये तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। Yes. एग्रीड? तो यहाँ पे भी तुम्हारा 60 आ सकता है, ये 60 होगा, ये कितना होगा फिर? 30 होगा कि नहीं? तो ये हाँ। यहाँ पे हिट कैसे कर रहा है? 90 डिग्री पे हिट कर रहा है,
Yes, sir. एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. ये 30 डिग्रीज है, ये 60 होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60. ये 30. तो अभी नाउ इज अ रे ऑफ लाइट, यानी पाथ क्या है? रे, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है. पाथ क्या है? पाथ इज फ्रॉम P to Q. Now the ray is hitting at point R. Is it hitting at an angle of 90 degrees, students? तो क्या होगा Yes, अगर sir. रे का? अभी क्या होगा इस रे का? क्या होगा? Will it retrace the same path? Yes, Yes. sir. ये देखो ना, जाके वापस रिट्रेस होगा. तो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, अगेन व्हाट ऑफ देम आर? ये देखो, इसको जाना था सीधा, सॉरी 180 नहीं होगा, इसको जाना था सीधा. प्लीज स्टूडेंट ध्यान से सुनना, इसको जाना था सीधा. हाँ यस, इट रिट्रेस, लेकिन रिट्रेस कर उसी पाथ में, तो 180 डिग्री जाएगा. ये डेविएशन हो गया. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इट हैज डेविएटेड, इट्स फाइन. हाँ, sir. Yes. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैन आई इरेज नाउ? 1 minute. कैन आई इरेज नाउ? Yes, sir. So next question. A magnified inverted image is located at a distance of. ध्यान से सुनना. Question is magnified inverted image is located. Image के बारे में बता रहा हूँ. Image is located at distance 32 centimeter from concave mirror of focal length 12 centimeter. Determine object distance. Find object distance and tell whether the image is real or virtual. And image is real or virtual. That you have to find out. Find out the object distance and say whether the image is real or virtual. Students, is the question clear to all of you all? Once again, a magnified inverted image is located at a distance of 32 centimeter from a concave mirror focal length. And बहुत easy है students. Find out U.
and tell me about the image. Is it real or virtual? Students, सबसे पहले तुम्हें आंसर यू का मिल सकता है या इमेज का मिल सकता है स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स किसका आंसर मिलेगा पहले? सर वी मिलेगा ना? क्यों? इमेज भी तो मिल सकता है ना. रियल इमेज इज ऑलवेज व्हाट? डायरेक्ट, अपराइट या इन्वर्टेड? सर इन्वर्टेड. वर्ड इन्वर्टेड आ रहा है. सर नहीं, मुझे लगा वी बोल रहे वी मिलेगा या यू 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 मिलेगा. हाँ, कोई प्रॉब्लम. मैंने वी नहीं. अच्छा, ये भी स्टूडेंट दो तरीके से तुम कर सकते हो. तुम वी निकालो और वी का तुम्हारा आंसर क्या आता है? पॉजिटिव में आता है, कॉन्केव मिरर है ना. प्लीज ध्यान से सुनना, हाउ टू अंडरस्टैंड. कॉन्केव मिरर है ना स्टूडेंट्स. कॉन्केव मिरर का मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. अगर तुम्हारा इमेज उसी साइड पे होगा तो तुम्हारा रियल इमेज होता है. अगर इमेज राइट हैंड साइड में आया तो वर्चुअल होगा. यानी अगर तुम्हारा आंसर वी नेगेटिव में आया तो रियल, अगर तुम्हारा आंसर वी पॉजिटिव में आया तो वर्चुअल. एग्जैक्ट वे ये है. ये ध्यान में रखना, ये एग्जैक्ट प्रूफ ये है स्टूडेंट्स. वी को निकालना है, जो जो हर्ष बोल रहा था. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इन्वर्टेड और अपराइट के ऊपर ही ले लिया. यानी अगर सपोज मुझे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मिला, उसका मतलब वो इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल के साथ में चला जाएगा. यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अगर मुझे पॉजिटिव मिला तो वर्चुअल के साथ में चला जाएगा. अगर हाइट ऑफ इमेज मुझे नेगेटिव मिला तो उसका मतलब ये इन्वर्टेड होगा. नेगेटिव साइन का मतलब इन्वर्टेड. हाँ, ये हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल. तो जब भी तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोला, तुम्हें हाइट ऑफ इमेज नहीं फाइंड आउट करना है, तुम्हें वी फाइंड आउट करना है. यानी यहाँ पे तुम्हें स्टूडेंट्स वी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आई गेटिंग इट? And that will be equal to how much? Negative 30 we consider. It's a real image. Real image is always inverted. It seems Norman has put the answer. Correct. Please, rest of you all, just give me the answer for you. Yes, friends, getting the answer. U is equal to how much? You get U is how much? 19.2. Yes, sir. Will the answer will be in positive or negative? Negative. Sir, negative. Negative. Object is always negative. Formula क्या होगा? 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. लेकिन V को तुम क्या लोगे? -32. Image is inverted. And since it's inverted image, it's a real image we consider. Okay, the next question, students. A focal point. The answer sunna. A focal point is located 20 centimeter from convex mirror. Focal point located at 20 centimeter from convex mirror. An object is placed 12 centimeter from the mirror. Object placed 12 centimeter from mirror. Students, find image distance. Find V. The question is very easy.
focal point located at 20 centimeter from convex mirror, object placed 12 centimeter from mirror, find D. Such an easy question. Sir, 7.5. 7.5. Is the answer positive? Positive. 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 Absolutely correct. Come on, the rest of the students, are you getting it? No one also has got it. Harsh, what about you? Sir, why you have drawn that two mirrors? हाँ, सर आपने दो मिरर क्यों बनाए? अरे मैं ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी देख रहे हैं, इसको अच्छा solve सर करो। मैं नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए रखा है। Please, the rest of them get the answer. It's 7.5. Harsh, what about you? सर गॉट Okay, got it. यस हर्षिता क्या कर रहे हो तुम? हर्षिता तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, आंसर नहीं दे रहे हो। हर्षिता, Yes, sir. क्या आंसर नहीं दे रहे हो तुम? समझ में आ रहा है हर्षिता? Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट यू रिया? Yes, sir. गेटिंग इट? Yes, sir. आंसर मिला तुम्हें? Yes, sir. Got it. कौन सा फॉर्मूला है बताओ? See like that, ना mirror So formula. yes, sir. हाँ, बोलो 1 by f. 1 by v plus 1 by u. अच्छा मुझे बताओ फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट लोकेटेड, यानी ये फोकल लेंथ दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. How much is that for a convex mirror? Is it positive or negative for convex mirror? So it's positive. Very good. It's a vertical focus, so plus 20 centimeter. And the object is placed. So what is u? Will you take positive or negative? So it's negative. Absolutely correct. It's on the principal axis between infinity and polarity. So तुम्हें f मालूम है students, तुम्हें u मालूम है, तो भी पूछा है. See? He's able to answer. Good. And you'll get the answer as plus 7.5 centimeters. Okay, students. Next one. Students, the next question. Now, if you look over here, students, given to you are two mirrors, students. One is a spherical mirror and one is a plane mirror, students. An object O, ये object O है, students. Object O moves towards the plane mirror. यानी मैं object O को plane mirror की तरफ लेके जा रहा हूँ. Please pay attention, students. The object O को plane mirror की तरफ लेके जा रहा हूँ, students. Then, in which direction will the image I? In which direction will the image I will move towards? Image is formed due to successive reflection from M1 and M2 respectively. Students, ये object O है. जैसे जैसे मैं object O को right hand side की तरफ move करता रहूंगा तो इसका position change होगा. तो object का जब भी position change होगा तो उसका image mirror के हिसाब से concave और plane mirror के हिसाब से successively change होता रहेगा. तो मैंने ये हाँ, पूछा सर. जो इमेज फॉर्म होगा वो किस तरफ जाएगा? Will move towards where?
सर वो ऑब्जेक्ट राइट में जाएगा लेफ्ट में? I'm moving towards right. I said it very clearly, Naresh. It's moving towards a plane mirror. मैंने बोला object is moving towards a plane mirror. It will Object move is towards plane mirror. No? yeah. तो मुझे ये Image will बताओ move towards plane. इमेज कहाँ पे मूव करेगा? तो द लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? सर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से होगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉब्लम के हिसाब से देखो ना, हम लोग ने प्रॉब्लम में तो वही तो किया था स्टूडेंट्स. अभी देखो, फॉरगेट अबाउट दिस, मुझे बताओ, ये फॉरगेट अबाउट दिस, ये मिरर को भूल ही जाओ स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कौन सा कॉनकेव है ना? तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, प्रोवाइडेड इट्स नॉट विद इन द फोकल लेंथ, वी अज्यूम इन दैट केस इटसेल्फ ओनली. अगर तुमने फोकल लेंथ के अंदर अज्यूम किया तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा इमेज. एग्रीड. लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा? अगर ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा इमेज अंदर होगा. लेकिन अगर मैंने विद इन द फोकल लेंथ नहीं लिया स्टूडेंट्स, तो मेरा इमेज तो रियल ही होगा ना स्टूडेंट्स. और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट इस तरफ लेके जाऊंगा तो कैन आई से, ध्यान से सुना, विद रिस्पेक्ट टू कॉनकेव मिरर स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, फॉरगेट अबाउट मिरर, प्लेन मिरर को भूल जाओ. Where is my image is formed? My image is formed on the same side itself only. It's real inverted all the time. यानी इसके हिसाब से तो मुझे राइट हैंड साइड में मिल रहा है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा स्टूडेंट्स, where is the image is formed? The image is formed in the mirror also inside. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर इनसाइड में. If I take, अभी इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ प्लेन मिरर को देखो. सर Object सो ये- वो भी Yeah. हम पॉजिटिव ही लेंगे ना? Yes, that's, ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. इमेज कितना है? 5 सेंटीमीटर. पॉजिटिव ही आएगा तुम्हें. हाँ यानी ये तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से. अगर सपोज तुमने ये ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को 1 ले लिया, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर कितना हो जाएगा? सपोज 3 सेंटीमीटर है, तो इट इज इनसाइड आल्सो 3 सेंटीमीटर. बट वेयर इज द इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म्ड? में शिफ्ट. Where is the image formed? Where is the image formed with respect to plane mirror? Is it on the right hand side? Is it on the behind the mirror, or it's in front of the mirror? Image is formed behind the mirror. Plane इनसाइड. mirror form हो रहा है, inside ही form हो रहा है ना स्टूडेंट्स. At the same distance we consider. तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के हिसाब से उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इमेज किस तरफ मूव करेगा. तो तुम्हारा आंसर होगा द इमेज विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर. सर This हम is लेफ्ट simple. लेके जा रहे हैं ना Yeah. ऑब्जेक्ट से. Pardon? ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं तो इमेज. Yes. अगर सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेना शुरू किया होता, are you getting it? Then in that case what would have happened? तो मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है इसके हिसाब से, वर्चुअल आता है यहाँ पे, विद इन द फोकल लेंथ, तो ये वर्चुअल आता. Are you getting it? At the same time ये डिस्टेंस तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा. Getting it? लेकिन वो वाला कंसेप्ट अगर तुम लोगे तो नाउ व्हेन दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, माय इमेज इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद, यानी वो पॉसिबिलिटी दोनों केस में अलग आती. स्टूडेंट्स इसके हिसाब से तुम्हारा वर्चुअल होता है, इसके हिसाब से भी तुम्हारा वर्चुअल है, लेकिन दिस इज फॉर्मिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी फॉर्मिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. दैट इज व्हाई दे हैवंट गॉन फॉर लेफ्ट हैंड साइड, दे आर मेकिंग इट टू मूव टुवर्ड्स द प्लेन मिरर. इसलिए उन्होंने क्वेश्चन इस तरफ नहीं बोला. They're saying it's moving towards the plane mirror. So moving towards the plane mirror, the image will shift towards right. फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा ना सर. अरे ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लेगा तो इमेज इसके हिसाब से राइट हैंड साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है. हाँ, तो ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है तो इमेज भी किस तरफ होगा?
इसको वापस मैं बोल रहा हूँ, इसको भूल जाओ, पहले इसके हिसाब से लो। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा जब तुम ऑब्जेक्ट किस तरफ लोगे? ये कॉनकेव मिरर है, किस तरफ जाएगा? रियली फॉर्म होगा ना, रियल इन्वर्टेड ही होगा ना, हाँ सर। तो इस तरफ ही जाएगा ना। जैसे जैसे यानी ये रिफ्लेक्शन इसके हिसाब से हुआ है। आई गेट इट। अभी सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो प्लेन मिरर के हिसाब से कैसे होगा? प्लेन मिरर के हिसाब से कैसे होगा? जब पहले केस में प्लेन मिरर में तुम्हारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। आई गेटिंग इट? हाँ Now with respect to O2, of course my mirror, my image is forming over here, but where exactly final position of the image? अगर तुम देखोगे तो where exactly it's forming on the right hand side. It's forming on the right hand side itself only, within the mirror itself only. Are you getting it? ये exactly मतलब वो previous पूछ रहे थे statement है। कि प्लेन मिरर के राइट साइड में फॉर्म हो गया लेफ्ट साइड में। क्या क्या बोल रहा हूँ? सर मतलब बस पूछ रहे थे कि आप इमेज राइट साइड में फॉर्म हो गया लेफ्ट साइड में प्लेन मिरर। हाँ, which is this due to successive right side में फॉर्म होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होगा, ये मैंने पूछा। अच्छा सर मुझे अलग लगा। Okay, students. Now we go for a concept related to, this was with respect to students reflection part of it. Okay, now we go with respect to the refraction. But before going for refraction, students, okay, let me go with respect to your concept related to your refraction, students. Okay, the next part of it, students. Refraction of light. अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? Reflection of light. Okay, अभी हम refraction of light कर रहे हैं, students. Refraction of light जब भी हम करते हैं, students, ये भी एक phenomena है, which can be better understood with the help of ray optics, students, geometric optics. And again, I'm telling you, students, तुम्हारा light का जो phenomena है, they have been explained with respect to 3 different ways. One is in terms of ray optics or geometric optics. The other one is wave optics we consider, and the other one is dual nature, particle nature. Wave optics is speaking about interference, diffraction, those kind of properties, polarization. Ray optics speaks about reflection, refraction, simultaneously also happening. तो हम अभी रिफ्रैक्शन के ऊपर जा रहे हैं, और ये चीजें बहुत स्टूडेंट्स ने की हुई है 10th स्टैंडर्ड में, और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस रिफ्रैक्शन में ज्यादा होता है रिफ्लेक्शन से, क्योंकि रिफ्लेक्शन तुम लोग करते हो 9th में तो भूल जाते हो, रिफ्रैक्शन तुम करते हो 10th में तो याद रहता है। ये इजी कंसेप्ट है, तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट पिक अप फ्रॉम द बेसिक्स फ्रॉम देयर इटसेल्फ ओनली स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन के अंदर सबसे पहले तुम्हारा ये है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, स्टूडेंट्स। Refraction is simply we consider as what, change in the direction of path of light due to the change in the optical densities of the two mediums. Okay, अगर suppose मैं vacuum लेता हूँ, students, if I happen to go for vacuum, then if I happen to go for air, then if I happen to go for water, then I go for ordinary glass, and if I go for diamond, okay, ये सारे क्या है? ये सारे transparent medium है, students. ये सारे transparent medium है. Are you getting it? Vacuum, there is no material medium over here. But अगर तुम देखोगे तो how exactly the air molecules are, they're very far away from each other. Water में देखोगे तो water molecules are slightly more closer to each other. तो इनका closeness ज़्यादा होगा, students. और अगर तुम ordinary glass लेते हो तो students इसमें और तुम्हारा closeness आ जाएगा, यानी तुम्हारा alignment of atoms and molecules are still close. Diamond के अंदर they are very 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 close. ये तुम्हारे diamond होगा, लेकिन ये सारे क्या है? ये transparent mediums है, students. ये transparent medium है. Now suppose if I make a ray of light to move through vacuum, students. So if I make an oblique ray of light, or very important, refraction is a phenomena for what ray of light? Oblique. Slant rays will undergo refraction. Perpendicular rays, we say refraction does not take place, but speed changes. So refraction is simply we consider is we consider as change in the path of light. ये एक important point है. ये change in path of light we simply consider a change in the direction of path of light. अभी देखो, जैसे मैं वैक्यूम लूंगा तो रे जाना था सीधा, ये सीधा जाना था, स्टूडेंट्स, क्योंकि in vacuum what exactly is speed of light? If I see the speed of light in vacuum, if I happen to consider in this case, speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं c से. जब भी वेरिएबल c आता है तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स विद द स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. जैसे वो वाटर में एयर में चला गया तो क्या होगा? उसका बेंड हो जाएगा, इट हैज डिविएटेड, जाना था सीधा लेकिन थोड़ा सा डिविएशन हो गया वो, तो उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा.
velocity of light in air is 2.998 around into 10 to the power of 8 meter per second. कम होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. तभी जाके जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो वी टेक दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. हम दोनों हम ऑलमोस्ट सेम लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम लेते हैं 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड. अभी ये स्पीड क्यों कम हो रही है? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए सर? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी. अभी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? अलाइनमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो वो क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यानी इसको अगर तुम्हें असाइन करना है कि इसके ऑप्टिकल डेंसिटी को असाइन करना है, तो कैसे असाइन करोगे? इसके ऑप्टिकल डेंसिटी को असाइन करते हैं हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.0003. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको हम लिखते हैं म्यू ऑफ एयर. अब ये म्यू ऑफ एयर लिखा है, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं सर? कंपेयर वैक्यूम से करेंगे ना, क्योंकि रे वैक्यूम से आ रही है. तो मैं इसको आगे लिखूंगा. यानी जब भी तुम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए यहाँ पे देखते हो, वी यहाँ पे देखते हो, तो उसको रीड कैसे करते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. दिस इज हाउ यू रीड. उसका मतलब रे कहां से आ रही है? रे इज कमिंग फ्रॉम वेयर? The ray is coming from vacuum. And where exactly the bending takes place? It bends or changes direction in air. तुम either side लिख सकते हो. Books can also give a refractive index of how do I consider in terms of vacuum with respect to air. ये हुआ तुम्हारा superscript, ये हुआ तुम्हारा subscript. Superscript ये दिखाता है कि रे कहां से आ रहा है, subscript ये दिखाता है कहां पे वो bend हो रहा है. ये हमेशा ध्यान रखना. So what is the refractive index of air? 1.0003. Comparatively to refractive index of vacuum, of course I'll consider vacuum का वहां नहीं पकड़ूंगा मैं. It's having no medium. यानी कोई भी optical medium तुम लोग है ना स्टूडेंट्स, refractive index, ध्यान से सुनना, of any optical medium other than vacuum is always greater than 1. ये ध्यान में रखना. Refractive index of any optical medium other than vacuum is always greater than 1. यानी ये एयर का हुआ, स्पीड कम हो जाएगी. ये है तुम्हारी स्पीड. जैसे वो वाटर में आया तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी. स्पीड विल फर्दर डिक्रीज. ये देखो डिविएशन और बढ़ गया तुम्हारा. Now if I say what is the reason for it? Because refractive index of water I'll consider will be equal to how much? 1.33, which is equal to how much? 4/3. रेशियो में लिख रहा हूं मैं. लेकिन अभी भी तुम इसको कंपेयर किससे कर रहे हो? कंपेयर अभी हमें एयर से नहीं करना है. हम ये सोच रहे हैं कि the ray of light is coming from vacuum to water. So vacuum to water. यानी स्टूडेंट्स जहां पे भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं फॉर दैट मीडियम, इट इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. सो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.5, जिसको मैं 3/2 लिखूंगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसको मैं 2.42 लिखूंगा. But now instead of vacuum, students, instead of vacuum, can I add on with respect to air also? Yes. तभी जाके students, many of them say it's a refractive index of water. If it is with respect to vacuum, can I write on with respect to air? Yes, it is customary. It is customary to write on refractive index of any medium. Refractive index of any medium. It is customary to write on refractive index of any medium. It is customary to write on refractive index of any medium. Always with respect to air or vacuum. Always with respect to either air or vacuum, because we generally take speed of light in air and vacuum to be the same. लेकिन क्या वो सेम होती है? नहीं होती. तो यहाँ पे भी बेंड हो रहा है. अगर तुम आगे देखोगे तो और बेंडिंग होगा, क्योंकि देखो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी और ज्यादा है. अलाइनमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्टिल मोर क्लोजर. तो ये और बेंड होगा, ये और बेंड होगा. सबसे मैक्सिमम बेंड होगा कहाँ पे? डायमंड. अगर मैं नॉर्मल बनाना चाहूँ तो ये सारे नॉर्मल्स आ जाएंगे जहां जहां पे बेंड हो गए. तो देखो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें कम दिखाई दे. तो जाना था सीधा, लेकिन देखो पाथ इसका कर्व हो गया है. ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड पाथ इन डिफरेंट मीडियम्स वी कंसीडर. So what is refraction? Refraction is what? Change in the direction of path of light.
But when is that possible? When an oblique ray of light is made to travel from one transparent medium to another transparent medium of unequal optical density, students, is called a refraction of light. ये तुम्हें values ध्यान में रखने की जरूरत है. Refractive index of air is 1.0003, water is 1.33 जिसको मैं 4/3 लिखूंगा, ordinary glass is 1.5 जिसको मैं 3/2 लिखूंगा, diamond is 2.4, approximation you can go for 2.4, 2.42 you can consider. लेकिन ये सारे with respect to vacuum हो रहा है. अगर तुम speed के हिसाब से देखोगे तो speed भी तुम find out कर सकते हो. Speed of light in air or vacuum we are taking it nearly the same. लेकिन जैसे वो पानी में चला जाएगा तो what is speed of light in water? Speed of light in water will decrease and that will be 2.25 into 10 to the power of 8 meter per second. अगर तुम glass में आते तो velocity of light in glass will still decrease 2 into 10 to the power of 8 meter per second. Speed कम हो रही है. If I happen to go for velocity of light in diamond will be still less, nearly equal to 1.25 into 10 to the power of 8 meter per second. So the speed of light goes on decreasing as it travels from one transparent medium to another transparent medium of unequal optical density. Optical density का मतलब alignment of atoms and molecules. These are closely and compactly placed. This is loosely placed. There is no material medium over here. This phenomena is called refraction. The symbol mu stands for refractive index. Since refraction एक phenomena है, refraction एक phenomena है, refractive index we consider is considered to be an adjective we consider. It's a numerical value. यानी हर एक medium को एक numerical value assign की है. अगर index बढ़ता है तो उसका मतलब phenomena of refraction भी बढ़ेगा. अभी अगर मैंने पूछा what is the index of air? 1.000. What is the index of water? 1.33, 4/3. तो जैसे जैसे refractive index एक value assign होती है वो बढ़ती जाएगी तो what happens? The bending of ray of light also will go on increasing. अगर इसी रे को मैंने सीधा परपेंडिकुलरली दिया होता स्टूडेंट्स तो क्या होता? What would have happened? No refraction. No refraction. हम बोलेंगे no refraction. लेकिन thus speed will change. Why not? Speed will certainly change. That means it's not necessarily always true that यहाँ पे in terms of change in speed will help in change in direction. There is change in direction, लेकिन that change in direction is neglected. It's very small. So it's neglected, very small. तभी जाके तुमने शायद स्कूल लेवल में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि if you look at the sun we consider during sunrise and sunset. जब ये horizon है स्टूडेंट्स and the sun is below the horizon तुम्हें बड़ा दिखाई देता है और बाहर की तरफ दिखाई देता है. यानी सन अगर एक्चुअल साइज ये है लेकिन तुम्हें बड़ा दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. लेकिन वही सन जब ये ओवरहेड होता है 12 बजे होता है 12 नून तो उसका एग्जैक्ट साइज तुम्हें दोपहर को दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि दोपहर के टाइम पे तुम्हारे सर के ऊपर होता है. तो हाउ द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग परपेंडिकुलर. यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है. द रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट परपेंडिकुलर तो तुम्हें एग्जैक्ट साइज ऑफ द सन दिखेगा स्मॉलेस्ट साइज में कंसीडर. लेकिन अर्ली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में क्या दिखाई देता है तुम्हें? इट अपीयर्स टू बी लार्जर. और अपीयर्स टू बी लार्जर किसके हिसाब से होता है? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. So if a ray of light is incident perpendicularly, no refraction takes place, but speed changes. That's why we go for oblique ray of light. For oblique ray of light, certainly there is change in direction of path of light. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. अगर तुम refractive index देखो students तो refractive index का simple तुम्हारा formula है. refractive index के दो formulas है students. refractive index of absolute refractive index students. Absolute refractive index is refractive index of any medium in comparison to air or vacuum. हमेशा. That's absolute. And it is always given by the formula sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. This is the formula for refractive index we consider. And अगर suppose मैंने दिया है refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ये क्या दिखाता है? रे कहाँ से आ रहा है? ये क्या हो रहा है? रे कहाँ पे बेंड हो रहा है? तो दो तरीके से लिख सकते हो इसको. एक मैं लिखूंगा साइन है अपॉन साइन है. उसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट मीडियम में. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? सेकंड मीडियम. एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब भी रे बेंड होता है स्टूडेंट्स, ये बेंड हुआ है, जाना था सीधा लेकिन हुआ बेंड. तो ये जो एंगल तुम देख रहे हो ना, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसके प्रीवियस केस में तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं. रिफ्रैक्शन में रे जाता है दूसरे मीडियम में,
of another optical density. So in that case, angle formed by the refracted ray with the normal at the point of incidence is called angle of refraction. So refraction कहाँ पे होता है? Medium 2 में sin I upon sin I, which can be also written as refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो किससे करूंगा? Error और vacuum, which is also equal to what? Speed of light in the first medium, the speed of light in the second. यानी जब भी तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी तुम मैथमेटिकल रिलेशन लेते हो तो ये तुम्हारे 3 बेसिक रिलेशंस है। ये होगा स्नेल्स लॉ जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, sin I upon sin R, v1 by v2, that's velocity of light in the first medium to the velocity of light in the second medium. This can be also written as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. The other medium is but obvious, either air or vacuum, because we generally take speed of light in air or vacuum to be nearly the same. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir, clear. Can I erase it? इसको erase 1 करो minute. students. Done. Okay. Functions. Now, when I speak about with respect to refraction, I told you it's with respect to one medium to another students. Okay, I'll give you a mathematical relation for the students. एक formula देता हूँ which will help you out, और कुछ formulas हम in short derive भी करेंगे students. This will help you out to solve many questions onto simple questions onto refraction. Okay, now if I happen to go for refractive index of any medium 2 with respect to medium 1, और ये जो application में कर रहा हूँ, ये जो formula लिख रहा हूँ students, कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट मीडियम हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम. दिस इज हाउ द वर्ड ऑप्टिकली शुड बी यूज्ड. ये जो मीडियम 2 है वो हमारा ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, यानी यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्टली प्लेस्ड. तो अब ये सारे फॉर्मूलाज में एक लाइन में लिखना फ्रेंड्स. पहला वाला तुम्हारा आएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये तुम्हारा क्या होगा? स्नेल्स लॉ, जिसको हम क्लियरली हम बता सकते हैं. सपोज अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये तुम्हारा नॉर्मल है. अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ. आई गेटिंग इट? यानी ये रे को जाना था सीधा लेकिन ये बेंड हो गया. ये जो एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं डिविएशन.
इसको हम बोलते हैं डिविएशन। यहाँ पे भी डिविएशन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर, अगर मैं बोलूँ इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर, तो ये सबको पता है स्पीड तो कम ही होगी, ऑब्लिक रे लिया, स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज इन दिस केस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन क्या क्या साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है क्या? यस स्टूडेंट्स, यानी जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी ऑप्टिकल स्लैब को स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे देयर इज साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी अगर ये, ध्यान से सुनना, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट 100 जूल्स की गिर रही है on a slab of glass or on a water, we consider 100 joules of light अगर गिर रही है तो 100 joules में से ये तुम्हारा क्या है, surface of water है। तो कौन सा फिनोमेना मोर डोमिनेंट होगा, रिफ्रैक्शन मोर डोमिनेंट होगा या रिफ्लेक्शन मोर डोमिनेंट होगा? तो तुम सीधा बोलोगे तो ग्लास है या तो पानी है, रिफ्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो 100 जूल्स में से रिफ्रैक्शन, लेट मी अस्यूम कि ये 90 जूल्स रिफ्रैक्ट होगा, लेकिन 2 जूल्स रिफ्लेक्ट करेगा। 100% ऑफ इंटेंसिटी अंदर नहीं जाएगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी करेगा, सच दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पे आई एंड आर डैश होगा, ये आर डैश इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो डेंसर से रेयर जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? डेंसर टू रह जाएगा तो पार्ट ऑफ इट विल सर्टेनली, लेकिन वो डिपेंड्स होता है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड होगा, जो हम आएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, वो एक कंसेप्ट है। आई गेटिंग इट? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन बहुत सर कम तो दोनों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, वहां पे तुम्हारा 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत मार्जिनल रिफ्लेक्शन होगा। और वहां पे तुम्हारा TII का कंसेप्ट ही आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। तो ये तुम्हारा साइन आई अपॉन साइन आई होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट होगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा? सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। फ्रेंड्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, एग्री? Which can be written as what? इसको मैंने लिखा था refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. Did I speak about the other medium? No. अगर मैं ये mu2 लिखता हूँ mu1, तो मेरा दूसरा मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम हो सकता है। तो तुम दोनों को एयर में लिखो या वैक्यूम में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये 3 फॉर्मूलाज क्लियर हुए स्टूडेंट? सबसे पहले Yes, sir. उसके बाद में अगर मैं दूं तो क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अभी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुना, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब क्या है? अभी ये सोचो कि ये सरफेस ऑफ वाटर है स्टूडेंट्स, ये सरफेस ऑफ वाटर है, एग्रीड? तुम्हारा फ्रेंड बाहर की तरफ है, उसने एक रेड कलर की लाइट भेजी हुई है, ओके, लेजर बीम से, और वो रे ऑफ लाइट पानी के अंदर जाती है और तुम पानी के अंदर हो, तो यू आर अ पर्सन हु इज वाचिंग इट। So for you as an observer student, what exactly path of light will be? You'll say sir P to Q, Q to R. क्या ये क्लियर हुआ? ये तुम्हारा पाथ ऑफ लाइट होगा, एग्रीड? क्योंकि रेज इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड। लेकिन अगर सपोज तुमने पानी के अंदर एक मिरर रखा है और मिरर को एग्जैक्टली तुमने परपेंडिकुलर रखा है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस, तो क्या होगा, वो हिट होकर वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी हुआ क्या स्टूडेंट्स, टोटल फिनोमेना चेंज हो गया। जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे था वो तुम्हारा इंसिडेंट रे हो गया, जो तुम्हारा इंसिडेंट रे था वो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। कैन आई से एंगल विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली? हाँ, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अभी इस बंदे का पाथ क्या है, ये बंदा जब देख रहा है तो इसको क्या पाथ होगा, सर इसका पाथ होगा R to Q and Q to P। कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी इसके हिसाब से, ध्यान से सुना, इसके हिसाब से स्नेल्स लॉ क्या होगा, एवरीथिंग करेक्टली, ये ऑब्जर्वर है ना, इसके हिसाब से क्या होगा, ये बोलेगा भाई रे आ रहा है 1 to 2, 1 से जा रहा है 2 पे बेंड हो रहा है, तो ये बंदा बोलेगा सर इट्स साइन आई अपॉन साइन आई, है ना? लेकिन जब ये ऑब्जर्वर हो जाएगा
तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है सर? इसके मेरे हिसाब से तो रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम 2 to 1. I getting it? I getting it? In this case, if I happen to consider what exactly I'll write on in this case, sir, it's entirely reciprocal of it. ये तुम्हारा reciprocal हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे अगर देखूंगा तो कहने से this will be sin r upon ये तुम्हारा angle I will be equal to r और ये I तो कहने से both of them are reciprocal of each other. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ. Is this clear, students? Yes. Yes, sir. Now further ahead, अगर तुम आगे देखोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. If I write on this manner, I can also write in velocity of light in the first medium. So can I say distance covered by light in the first medium, time taken, distance covered by light in the second medium, time taken, keeping time constant. है ना? मैं टाइम को कैंसिल कर सकता हूँ. यानी अगर मैंने बोला a ray of light is traveling through air, ध्यान से सुना, a ray of light is traveling through air a distance of 5 centimeter. What is the distance covered by the light in a slab of water or in a slab of glass? In same time. मैंने पूछा what is the distance covered by the ray of light in a slab of glass? In same time. तो मेरा ये डायरेक्टली आएगा d1 by d2 से आएगा ना. टाइम टेकन दोनों केस में सेम है तो मैं टाइम को कैंसिल कर दूंगा. डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट मीडियम, डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेकंड मीडियम. इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. ये स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम. व्हाट इज स्पीड? सो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. लैम्डा 1 लैम्डा 2. फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट. हाँ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट. मैंने न्यू लिखा है. शायद स्टूडेंट्स एफ लैम्डा पे लिखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एफ Sir, आएगा D1, D2 क्या है? डिस्टेंस है ना. Distance covered by light in the first medium to the distance covered by light in the second medium, keeping time constant. अभी तो मैंने एग्जांपल दिया. अगर मैंने बोला ray of light is traveling from air to glass, refractive index of तुम्हें ग्लास मालूम है. मैंने बोला ray of light is traveling 5 centimeter in air. What is the distance travel in glass for in same time? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया तुम्हारा. ये तुम्हें 5 सेंटीमीटर मालूम है, ये तुम्हें पूछा गया, अरे ये म्यू दिया है, हो गई बात. Yes. वही अगर मैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से पूछी तो वो भी आ जाएगा. सो ये क्या होगा? न्यू इंटू व्हाट इज न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. तुम न्यू को ऐसे लिखो या एफ लिखो, इट्स फ्रीक्वेंसी. ये है फ्रीक्वेंसी एंड स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्ज. इट्स फ्रीक्वेंसी गेट्स कैंसिल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप सर ये बोलना चाहते हो कि जब ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, लेकिन उसका वेवलेंथ चेंज होता है. यस, वेवलेंथ चेंजेस. The wavelength changes in that case. Frequency remains constant. That means what exactly remains constant? अरे हाँ सर, आपने बोला जब ये बंदा एयर में खड़ा था तो उसने रेड कलर का लेजर डाला. पानी के अंदर मैं था तो मुझे रेड लाइट के अंदर दिखाई दी, यानी कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा था. कलर तो वही था, बाहर भी रेड अंदर भी रेड. आपने बोला कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी व्हाट एग्जैक्टली इट स्पीक्स अबाउट? स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी स्पीक्स अबाउट color of incident light, which all the time remains constant when it travels from one medium to another, one transparent medium to another. So students ये एक ध्यान में रखना, which property of light remains constant? Which line? Visible light के बारे में बात कर रहा हूँ. When it travels from one transparent medium to another transparent medium, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए color of incident light, that is frequency and not wavelength. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear students? Yes, sir. Now when you move further students, तुम्हारे lambda 1 upon lambda 2 आया, d1 by d2 आया, 1 upon v1 by v2. The rest of the formulas if you happen to consider, which can be easily derived, ये तुम्हारा next वाला कौन सा है? Sir, it's actually equal to real depth upon apparent depth.
It's real depth upon upper end depth we consider. Shifting of object from the base to a certain height we consider. ये तुम्हारे concept आता है, which is also equal to 1 upon sine of critical angle we consider. 1 upon sine of IC. What is reciprocal of sine theta? Cosec theta we consider. So can be written in terms of cosec theta. लेकिन ये IC क्या है? Critical angle. यानी ये concept जाता है तुम्हारा real depth upper end depth के लिए, ये जाता है तुम्हारा critical angle के लिए. इसी को अगर मैं सपोज मैं फॉर मीडियम की सब यानी सोचो स्टूडेंट्स, इसके और रिलेशंस हैं, आगे जाके और रिलेशंस के साथ में तुम मैच अप कर सकते हो स्टूडेंट्स. लेकिन ये क्या दिखाता है स्टूडेंट्स, यही रिलेशन तुम इससे भी मैच कर सकते हो, इससे भी. यानी सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. 1 2 3 4 5 यानी आई कैन आस्क 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4. आई कैन आस्क 2 with 3, 2 with 4, 2 with 5, 2 with 6, 3 with 4, 3 with 5. I can ask so many combinations can be asked. तो ये तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि ये तुम्हारे मैथमेटिकल रिलेशंस है. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मीडियम मैंने ऑप्टिकल एरर किया, सेकंड मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी लिया. अगर बाय चांस मैं इसको चेंज कर देता तो क्या होता, तो भी ये मेरा 1 ये और आ ही रहता स्टूडेंट्स, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती. ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम आती. ये तुम्हारा क्या होता, 1 हो जाता, ये 2 हो जाता. ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाता. समझ में आ रहा है, ये चेंज होता. ये तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेकंड मीडियम अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट मीडियम हो जाता. ये लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 हो जाता. ये उल्टा हो जाता स्टूडेंट्स, अपर इन डेप्थ ऊपर जाता, रियल डेप्थ नीचे जाता, और ये रेसिप्रोकल हो जाता. ये ध्यान में रखना चाहिए. ये तो रिलेशंस है, होल्ड्स ट्रू ऑलवेज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. ये हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. यहाँ पे गलतियां करते हैं. रेयर टू डेंसर होगा तो रियल डेप्थ अपॉन अपर इन डेप्थ 1 अपॉन साइन ऑफ आईसी. लेकिन अगर मैंने इसको डेंसर डाल दिया, इसको रेयर डाल दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन आईसी ऊपर चला जाएगा. ये होगा अपर इन डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ. ना इसी को अगर मैं एक एग्जांपल में लिखूं तो सुन ध्यान से सुनना. अगर सपोज मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो देखो ना, वाटर क्या है सर, रेयर मीडियम है. ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है. ये सही आएगा. यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ आई. साइन ऑफ आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वाटर में. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे फॉर्म होगा, ग्लास में. which is equal to velocity of light in water upon velocity of light in glass. This is how you write down. तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हें दो अलग मीडियम देंगे स्टूडेंट्स. which is also equal to what, refractive index of क्या लिखोगे, glass upon refractive index of water. ग्लास किसके हिसाब से लिखोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, एयर और वैक्यूम. एयर और वैक्यूम. और ये मैं बता चुका हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो स्टूडेंट्स, तो रेशियो में तुम्हारे प्रॉब्लम्स इजी आते हैं, rather than putting 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, तो 1.33 की जगह पे 4/3 लेके तुम्हारे आंसर्स बहुत अच्छी तरह से आएंगे. और ये देखो 4/3 आ गया ना, तो तुम्हारा क्या होगा, मैजिक ट्रायंगल 37 53 3 4 5. ये ट्रायंगल भी ध्यान में रखना, क्योंकि 3 4 यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है. तो ये ट्रायंगल के हिसाब से तुम्हारा मैच हो रहा है 4/3. तभी जाके स्टूडेंट जनरली वाटर और ग्लास के अंदर डेसिमल्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेते हैं, रेशियो में रखते हैं, so that उनका आंसर तुरंत फास्ट आ जाता है. ये तुम्हारे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया. ये क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, सो दिस इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये होगा वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा आ गया. which is equal to distance in water upon distance in glass, which is equal to wavelength in water upon wavelength in glass, which is equal to real depth upon apparent depth, which is equal to 1 upon sine of critical angle. क्या ये सारे फॉर्मूलास क्लियर हुए स्टूडेंट्स? Yes, Can I erase this? sir. Erase करूं स्टूडेंट्स? Sir, हाँ, sir मुझे वो RDAD समझा नहीं. ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ. मैं ये दोनों का प्रूफ करूँ, दोनों को मैं बताऊंगा मैं. लेकिन Sir, हमने और 1 upon sin IC क्या है? आईसी का मतलब क्रिटिकल एंगल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट. ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों चीज मैं बताऊंगा मैं. अभी तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला दिया. Can I erase this? Erase करूँ मैं? 1 1 में. minute, sir. आरडी का मतलब रियल डेप्थ है, एडी का मतलब अपेरेंट डेप्थ है.
in area students. Yes. चलो refracting index हमेशा greater than 1 होता है. Nu Yes, sir. refractive index of any optical medium other than vacuum is always greater than 1. Air का भी 1, अगर air का correct value लोगे तो 1.0003, लेकिन जब भी तुम solve करोगे तो वो 1 देते हैं, तभी जाके हम speed of light in air और vacuum को same लगता है. तो refractive index of any optical medium other than vacuum we consider as always greater than 1. Yeah, people say other than air is also greater than 1. Sir, और वो हमेशा with respect to vacuum और air ही रहेगा ना? हमेशा वैक्यूम लेते हैं, लेकिन वैक्यूम को हम एयर बता सकते हैं क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है बहुत ही स्मॉल. हाँ सर. फिर इस करो अभी. Yes. Now suppose if I give you students, ये रैंडम मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रे बेंड हो रहा है स्टूडेंट्स. अगर सपोज मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल, स्टूडेंट्स कैन आई से माय sin I will be nearly equal to R, my sin R will be nearly equal to R. एग्रीड. अगर मैंने ये एंगल बहुत ही छोटा लिया तो मेरा स्मॉल एंगल्स के लिए sin थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा. तो अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो क्या लिखते हो तुम? sin I upon sin R, है ना, which is equal to what? Refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1. So now can I write down, can I say I by R can be written as N2 by N1? Therefore can I say angle of incidence into N1 is equal to angle of refraction into N2? क्या ये clear हुआ students? ये n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू की जगह पर मैंने n डाल दिया. डिड आई स्पीक अबाउट अदर मीडियम? नहीं. तो अदर मीडियम है क्या? एयर और वैक्यूम में ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इज माय एंगल्स वेरी स्मॉल? यस. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear? If the angle of incidence and angle of refraction are very small, sin I will be nearly equal to I. Sin I will be nearly equal to R. Refractive index of medium 2 with respect to 1 यानी V2 by V1 होगा तो N2 by N1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Sir, N2 N1. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है. कहाँ पे जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो म्यू यूज करेंगे या कहाँ पे n? स्टूडेंट्स म्यू और n both stands for refractive index. Agreed? Which has no unit. It has no unit. It's dimensionless. अभी तो Ratio. it's a pure ratio. Sin I upon sin R. Yeah, speed of light in the first medium to speed of light in the second medium. It's a pure ratio. So it has no unit. It is dimensionless. क्या ये clear हुआ students? Is it clear? हाँ. Still, I've given you real light is starting from medium 1 and coming back to medium 1, students. Okay. This is angle of incidence, students. This is angle of refraction in the first case, students. And it's starting from medium 1 to medium 2, medium 2 to medium 3, medium 3 to medium 4, medium 4 to back to medium 1. Okay. And they are of different refractive index. Since my question is, can you give me the answer of refractive index of 2 with respect to 1? Multiplied by refractive index of 3 with respect to 2, refractive index of 4 with respect to 3, refractive index of 1 with respect to 4. इसका आंसर क्या होगा? अलग अलग So मीडियम. 1. Absolutely correct. 1 आएगा. कैसे? Sir, refract index of 2 upon 1. है ना? 2 upon ये देखो 3. अलग अलग तरीके से भी करोगे तो तुम्हें मिलेगा. देखो कोई स्टूडेंट बोलेगा क्या सर इसको आप लिखते हो ना, आप लिखो ना n2 by n1, आप जो हम बोलते थे
इंटू इसको क्या लिखोगे सर, n3 by n2 लिखोगे, इसको लिखोगे n4 by n3। आपने जो फॉर्मूला में बोला था यहाँ पे n1 by n4 हो जाएगा, तो देखो 4 कैंसिल हो जाता है, 1 कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, 3 कैंसिल होता है, आंसर क्या है 1। लेकिन ये कभी पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स, व्हेन द फाइनल out of the light is, when the final ray of light coming out to the medium should be exactly equal to the first one, तो ही possibility है। यानी अगर मैं चाहूँ तो I can say in this case a ray of light is traveling from air to glass, glass to water, water to diamond and then back to air, तो उसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, मुझे आंसर 1 ही आएगा। ये एक तरीका है। दूसरे तरीके से अगर देखोगे तो बोलेगा सर स्पीड से भी तो जा सकते हो। देखो स्पीड से लाऊंगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन थर्ड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फोर्थ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फोर्थ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, सारे कैंसिल हो रहा है, आंसर 1 होगा। अगर मैं एंगल के हिसाब से जो, वो भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। देखो साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो आर है और ये आर स्टूडेंट्स कहने से ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये मैं लेता हूं अनदर एंगल R1, ये होगा मेरा R1, ये होगा मेरा R2, ये होगा मेरा R2, back this angle will be exactly equal to I only। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैं एंगल के हिसाब से तो everything will get cancelled, my answer will be 1 itself। यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कि अगर मैंने कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है और उस ग्लास स्लैब के अंदर मैंने साइड A B C D लिया है और अगर मैंने रे ऑफ लाइट को ऑब्लिकली स्ट्राइक किया है, सो इट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, बेंड्स टुवर्ड्स एंड बेंड्स अवे, है ना स्टूडेंट्स? ये रिफ्रैक्शन है, शायद तुमने 10th में पढ़ा होगा। ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ज्योमेट्रिकली जब भी तुम करते हो ना, ज्योमेट्रिकली तुम्हें करते हो तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी एग्जैक्टली द सेम स्टूडेंट्स। I will be equal to E, you will get I equal to E। the product यहाँ पे भी क्या होगा, what is the product, refractive index of glass with respect to air into what, refractive index of air with respect to glass, what's the answer? इसका आंसर क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे, velocity of light in air upon velocity of light in glass into velocity of light in glass, तो आंसर क्या होगा, 1 ही आ रहा है। यानी ये एंगल इससे इक्वल होना जरूरी है। तो ये देखो ना, ये देखो ये आर होगा, ये भी आर होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो पहले केस में क्या होगा, साइन आर अपॉन साइन आर। दूसरे केस में क्या होगा सर, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस, लेकिन इमर्जेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस था ना, तो ये आंसर 1 आ रहा है। जब 10th में बच्चे जब ये एग्जाम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम पे तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स मैनिपुलेशन करके करते हैं। तो मैनिपुलेशन में ये होता है कि तुम्हारा आई हमेशा ई से इक्वल होगा, जैसे तुम्हारा इक्वल होगा तो तुम्हें रे हमेशा पैरेलल मिलेगा, हमेशा तुम्हें पैरेलल मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, कैन आई इरेज दिस? Done. Next lecture will be continuing further, okay? Kindly revise the formulas also, okay? Next lecture I will be completing with your refraction. This is more easier, so this will be much more faster. Okay? Okay, sir. Yes. Bye. Bye, Thank sir. you, Thank sir. you, Bye. sir. Yes, Thank you, sir. sir. Bye, sir.